گزشتہ 16 ماہ میں مخلوط حکومت نے گوادر کی ترقی کے لیے بے پناہ کام کیا. ہنگامی بنیادوں پر گوادر بندرگاہ کی صفائی کا عمل شروع کیا. ماضی کی حکومت نے گوادر میں برآمدی زون کی تعمیر میں انتہائی غفلت برتی. گوادر سے پاکستان کی معاشی ترقی کا ایک اور دور شروع ہوگا. سی پیک کے حوالے سے چین نے 30 ارب کے منصوبے شروع کیے. ایران سے 100 میگا واٹ بجلی گوادر کو ہنگامی بنیادوں پر فراہم کی. مستقبل میں گوادر دنیا کی تیزی سے ترقی کرتی بندرگاہ بنے گی. وزیر اعظم کی میڈیا سے گفتگو. ماضی میں بلوچستان کو بنیادی وسائل سے محروم رکھا گیا. پی ٹی آئی دور حکومت میں گوادر کے ترقیاتی منصوبوں کو جان بوجھ کر التوا کا شکار کیا گیا. صوبے کے وسائل پر پہلا حق بلوچ عوام کا ہے. کچھ قوتیں نہیں چاہتی کہ بلوچستان ترقی کرے. وزیر اعظم شہباز شریف کا گوادر میں ماہی گیروں میں امدادی چیک اور طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا گوادر میں چائنا ایکسپو سینٹر اور متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد اور افتتاح. منصوبوں میں نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، بسیما خزدار روڈ، آوران جھلجاؤ روڈ اور 132 kV پنجگور ناگ بسیما نل ٹرانسمیشن لائن شامل. ملک کی ترقی کا راز زراعت، صنعت اور آئی ٹی کے شعبوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں مثمر ہے. گزشتہ دور حکومت میں سی پیک منصوبوں کو پہنچنے والے نقصان کا تیزی سے ازالہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب. فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس رجسٹریشن فارم کا اجرا. فنکاروں کو صحت کی جدید سہولیات فراہم کرنے کے لیے آرٹسٹ ہیلتھ انشورنس پروگرام شروع. فنکاروں کو پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کی سہولت مل سکے گی. وزیر اعظم محرم الحرام کے بعد پروگرام کا باقاعدہ اجرا کریں گے. تمام فنکار اپنی رجسٹریشن کا عمل مکمل کر لیں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب. چین کے ایگزم بینک نے پاکستان کے ذمے 2 ارب 40 کروڑ ڈالرز کا قرض رول اوور کر دیا. قرضے مالی سال 2023-24 اور 2024-25 میں واجب الادا ہیں. پاکستان کو قرضوں کا صرف سود ادا کرنا ہوگا. وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار. اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس. مجموعہ ضابطہ فوجداری ترمیمی بل 2021 منظور. بل کے تحت سزائے موت کے قیدیوں کی سزا کے خلاف اپیل پر 6 ماہ میں فیصلہ کیا جائے گا. فیڈرل ضیاء الدین یونیورسٹی بل، عسکری ادارہ برائے اعلیٰ تعلیم بل 2023 اور انڈس یونیورسٹی سائنس و ٹیکنالوجی بل 2022 بھی کثرت رائے سے منظور. چیئرمین تحریک انصاف مقدمات میں تاریخی حربے استعمال کر رہے ہیں. توشہ خانہ کے تحائف بلیک مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت کیا گئے. کیس کو سبوتاژ کرنے کے لیے احتجاج کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. ہیلے بہانوں سے بات نہیں بنے گی، عدالت میں پیش ہونا پڑے گا. معاون خصوصی عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس. اور اسلام آباد سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں بارش. 1 اگست تک پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے شمالی علاقوں میں بارشوں کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی. اربن فلڈنگ، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ. انتظامیہ کو چوکس رہنے اور تمام ضروری انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت. السلام علیکم ناظرین، نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد. میں ہوں نازیہ کمل. اہم خبریں آپ نے جانی. پروگرام میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ گوادر پورٹ دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والی بندرگاہ بننے جا رہی ہے. چاہتے ہیں پچھلی حکومت نے بلوچستان کی ترقی کو یکسر مسترد کر دیا. محمد نواز شریف کے دور میں شروع کیے گئے ترقیاتی منصوبوں کو جان بوجھ کر روک دیا گیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان باقی صوبوں کے ہم پلہ ہو اور تیزی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو. گوادر میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ موجودہ حکومت گوادر پورٹ کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. جنگی بنیادوں پر بندرگاہ کی صفائی کا اقدام کیا ہے جو اگلے سال تک مکمل ہو جائے گا اور گوادر ڈیپ سی پورٹ بن جائے گا. جو بڑے بحری جہاز وہ سامان لے کے آتے ہیں وہ نہیں آ سکتے تھے. ہم نے پھر جنگی بنیادوں پر ہم نے اس صفائی کا انتظام کیا اور آج پوری زور شور سے یہ صفائی جاری ہے اور انشاءاللہ اگلے سال
फरवरी मार्च में ये मुकम्मल हो जाएगा। और वो बिजली का मंसूबा जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत में वो उसकी बुनियाद रखी गई, पिछले दौरे हुकूमत में 4 सालों में सिर्फ 23 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन ईरान से गवादर आनी थी, उसको न लाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी इस मंसूबे को इस 6-8 महीनों में मुकम्मल किया। आज 100 मेगावाट बिजली गवादर में मुहैया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछली हुकूमत के दौर में 4 सालों के दौरान बलूचिस्तान की तरक्की को रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि 2015 में मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कई तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखा गया। बिजली के मनसूबों की बुनियाद रखी, लेकिन साबिक हुकूमत ने मनसूबों को रोक दिया। अब जब हुकूमत संभाली तो हंगामी बुनियादों पर बिजली के मनसूबे मुकम्मल करके 100 मेगावाट गवादर को बिजली मुहैया की है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का राज ज़राअत, सनत और IT के शोबों को जदीद खतूत पर उस्तवार करने में है। इस मुआशी इनकलाब से इक्तिसादी खुशहाली का सफ़र शुरू होगा और आवाम को इसके समरात बराह रास्त पहुँचेंगे। गवादर में एक्सपो सेंटर और दीगर मनसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत के 4 साला दौर में CPEC मनसूबों को पहुँचने वाले नुकसान का इज़ाला बर्क़ रफ्तारी से कर रहे हैं। तकरीब का अहवाल आगा मसूद खालिद से। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि गवादर की हैसियत पाकिस्तान के लिए एक माशी गेटवे की है। CPEC जैसे गेम चेंजर मंसूबे को गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली और बेहिसी के बाइस शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि गवादर पोर्ट को मुकम्मल तौर पर फाल बनाना और CPEC से मुंसलिक दीगर मंसूबों की तकमील हमारी अवलीन तरजीह है। पिछले 4 सालों में पिछली हुकूमत के 1 लाख टन कार्गो आया यहाँ। पिछले 1 साल में 6 लाख टन कार्गो हमने यहाँ पर अनलोड करवाया ताकि गवादर पोर्ट जो है वो बिजी हो, मसरूफ हो और पूरे पाकिस्तान का उसको फ़ायदा पहुँचे। $2.5 अरब जो वापस हमें मिला है चाइना से एग्जिम बैंक का, कौन करता है इस ज़माने में? इस कौम का भला यही इसी में है कि हम मिलकर काम करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान वसाइल से मालामाल खित्ता है। सूबे में ज़राअत और सनत के शोबों में इनकलाब का वाहिद रास्ता शमसी तवानाई पर इन्हसार है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक खूबसूरत तरीन इलाका है। अल्लाह ताला ने इसको बेपनाह नेमतों से नवाजा है और सबसे पहले इसके ऊपर हक इस सूबे के बलोच और पख्तून और दूसरे हमारे इमाम का है, उसके बाद किसी और का हक है। इसी अगर सोच को हम आगे लेकर चलते तो यकीन कीजिएगा यहाँ पर तरक्की और खुशहाली के समंदर वो यहाँ पर हर जगह मौजूद होते। मनसूबा बंदी और तरक्की के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि 16 माह की कलील मुद्दत में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान की मईशत को टर्न अराउंड करके बहाली और तरक्की की तरफ मोड़ दिया है। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान की तरक्की में खसूसी दिलचस्पी लेने पर शुक्रिया अदा किया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गवादर पहुंचने पर पाकिस्तान और चीन की हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाली दोस्ती की अक्कासी करते मंसूबे एक्सपो सेंटर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। गवादर फ्री जोन में कायम किया गया साउदर्न चाइना कमोडिटी एग्जीबिशन एंड ट्रेडिंग सेंटर गवादर पोर्ट और CPEC के दीगर मंसूबों के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने N30 बसीमा खुजदार रोड का इफ्तिताह किया। 2 लेन पर मुश्तमिल इस शाहराह की लंबाई 102 किलोमीटर है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिजली के मंसूबे पंजगूर नाग बसीमा नाल 132 kV ट्रांसमिशन लाइन मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। इस ट्रांसमिशन लाइन की कुल लंबाई 286 किलोमीटर है और इसमें 1103 टावर लगाए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तैयार होने वाले एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर और रनवे का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने 1.2 MGD डिसैलिनेशन प्लांट का इफ्तिताह और गवादर पोर्ट की मेंटेनेंस और ड्रेजिंग के काम का भी आगाज किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गवादर के लिए वाटर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन और सीवरेज नेटवर्क का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने 168 किलोमीटर तवील अवारान नाल रोड और 55 किलोमीटर तवील अवारान झलजाव रोड का संगे बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने 4,986 मिलियन रुपए की लागत से बनाए जाने वाले गवादर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फेज 2 का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर के फेज 1 की तौसी का भी संगे बुनियाद रखा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, ताहम माजी में सूबे को बुनियादी वसाइल से महरूम रखा गया। PTI दौरे हुकूमत में गवादर के तरक्याती मंसूबों को इल्तवा का शिकार बनाया गया। सूबे के वसाइल पर पहला हक बलोच अवाम का है। गवादर में मुस्तहिक माहीगीरों में इमदादी चेक और गवादर यूनिवर्सिटी के होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि गवादर को दुनिया की बेहतरीन बंदरगाह बनाया जाएगा, इलाके में तरक्की और खुशहाली लाएंगे, जिसके नतीजे में रोज़गार के मौके बढ़ेंगे और तिजारत और बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि लैपटॉप स्कीम चारों सूबों की मिल्कियत है, जिसका बुनियाद सिर्फ मेरिट है। लैपटॉप स्कीम में बलूचिस्तान के 3% कोटे को बढ़ाकर 14% करने का ऐलान भी किया। बलूचिस्तान में अल्लाह ताला ने जो मादनियात की दौलत आपको अता की है, ये सुई गैस के आगाज से लेकर आज तक रेकोडेक है, दूसरा वो कौन सा है जो सैंडक है, और इस तरह के बेशुमार और ज़मीन में मतफन ये ख़जाने अल्लाह ताला ने बलूचिस्तान के इस सूबे में अल्लाह ताला ने दिए हैं, और जिसके ऊपर सबसे पहला फायक हक बलूचिस्तान के आवाम का है, उसके बाद किसी और का हक है। ये जो इलाका है गवादर का, इसमें सबसे पहला फायक हक गवादर के आवाम का है, आपका है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक़ डार कहते हैं कि चीन ने पाकिस्तान के ज़िम्मे $2.4 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि चीन के एक्सिम बैंक ने कर्जा 2 साल के लिए रोल ओवर किया, पाकिस्तान दोनों साल सिर्फ सूद की अदायगी करेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक मईशत की बहाली और तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए हैं। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद शाहिद अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट के मफाहिमत यादाश्त पर दस्तखत के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि तवानाई बहरान पर काबू पाने और दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने के लिए मुल्क में नई रिफाइनरीज लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तापी मंसूबे पर 10 साल से कोई काम नहीं हुआ। मौजूदा हुकूमत ने तापी मंसूबे पर दोबारा काम शुरू करने के साथ साथ अज़रबैजान, रूस और कुछ खलीजी ममालिक के साथ मुआहदे करने के लिए बातचीत शुरू की है, जिससे ज़र मुबादला की बचत होगी और तिजारती खसारे को कम करने में मदद मिलेगी। एक बैरल पाकिस्तान में अगर हम अपनी रिफाइनरी के जरिए प्रोसेस करें और हालात वो हों जिनमें 20 से $22 का प्रीमियम चल रहा था, तो हम $20 हर बैरल पे बचाते हैं प्रीमियम में, अगर हम अपनी रिफाइनरी यहाँ पर लगाएं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेपनाह वसाइल से नवाजा है। काबिल तजदीद और मुतबादिल तवानाई के ज़राए से दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम करने में मदद मिलेगी। 138 MMCFD यानी 138 मिलियन क्यूबिक फुट इजाफी गैस जो है वो सिस्टम में डाल दी गई है, और ये सब पिछले 1 साल में हुआ है। नई दरियाफ्त की गई है, जो का बंद हो चुके थे कुएं उनको खोला गया है, नए सिरे से उनको ऑप्टिमाइज किया गया है कि ज्यादा इसी मशीन से, इसी कुएं से भाई आप ज्यादा गैस क्यों नहीं निकालते। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि मईशत का पहिया रवा दवा रखने के लिए तवानाई का शोबा इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसकी तरक्की के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम कर रहे हैं। मोहम्मद शाहिद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको आगाह करें कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात मरीम औरंगज़ेब ने फ़नकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का इजरा करते हुए कहा है कि सहाफ़ियों की तरफ फ़नकारों के लिए हुकूमत ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जल्द अपने हाथों से फ़नकारों को हेल्थ कार्ड देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि 2023-24 के बजट में पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फ़नकारों ने हमेशा पाकिस्तान के कल्चर, तहजीब और अदबी विरसे को फ़रोग़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर बजट 23-24 के अंदर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा जो आर्टिस्ट हैं, सहाफ़ियों की तरह उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोग्राम की रकम मुख्तस की गई है। www.dmpdemp.gov के ऊपर आर्टिस्ट की रजिस्ट्रेशन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जो वज़ीर आज़म ने शुरू किया है उसकी आज से इजरा हो जाएगा। बहुत जल्द इंशाअल्लाह मुहर्रम के बाद प्राइम मिनिस्टर इसका जो आर्टिस्ट हैं उनको उनका बाज़ाब्ता कार्ड का इजरा करेंगे। तब तक आप अपने आप को रजिस्टर करें।
قومی اسمبلی میں اہم قانون سازی کے دوران 29 بل کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے۔ اجلاس میں 8 قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس بھی پیش کی گئیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اخلاقیات کا درس دینے والے پہلے اپنے لیڈر کی اخلاق سے گری ہوئی باتوں پر قوم سے معافی مانگیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی خواتین کے حوالے سے مجھ سے منسوب باتیں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ مزید اجلاس کی تفصیل اس رپورٹ میں ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اخلاقیات کا درس دینے والے پہلے اپنے لیڈر کی اخلاق سے گری ہوئی باتوں پر قوم سے معافی مانگے۔ کیا بیٹی ہماری مریم نواز خاتون نہیں ہے؟ کیا ہماری بہن فریال جو ہیں وہ خاتون نہیں ہیں؟ ان کا لیڈر جو ہے گندی زبان استعمال کرتا رہا، ان کے پبلک میٹنگز میں استعمال کرتا رہا، اور اس شخص کی اپنی گندی زبان اور اس کے گندے کرتوت اور اس نے جو تربیت دی ہے، یہ خواتین بھی اسی تربیت یافتہ جو یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر میاں نواز شریف میری تربیت کرے گا، وہ اپنے کسی اصولوں کے تحت اپنی جنگ لڑ رہا ہے، تو میری تربیت اسی طریقے سے ہو رہی ہے کہ میں بھی اسی اصولوں پہ جنگ لڑوں، اسی طرح ثابت قدم رہوں۔ ان کی روایات گالی ہے، ان کی روایات ولگیرٹی ہے، دے اپریشیٹ ولگیرٹی۔ قومی اسمبلی میں پرائیویٹ ممبرز ڈے کے موقع پر حکومت اور اپوزیشن کے مختلف ارکان کے 29 بل کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے۔ منظور ہونے والے اہم بلوں میں مجموعہ ضابطہ فوجداری ترمیمی بل 2021، تحفظ خاندانی زندگی و ازدواج بل 2023 اور پاکستان میں داخلے کے مقامات صحت عامہ بل شامل ہیں۔ آج کی قانون سازی کی اہم بات اجلاس میں 26 نئی یونیورسٹیوں اور مختلف تعلیمی انسٹیٹیوٹ کے قیام کے بلوں کی منظوری دینا شامل تھا۔ مجموعہ ضابطہ فوجداری ترمیمی بل 2021 کے تحت سزائے موت کے قیدیوں کی سزا کے خلاف اپیل پر 6 ماہ میں فیصلہ کیا جائے گا۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ کے توجہ دلاؤ نوٹس پر جواب دیتے ہوئے پارلیمانی سیکرٹری سعد وسیم نے کہا کہ ملک میں قدرتی گیس کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیر پور اقتصادی زون کو قدرتی گیس کی فراہمی کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر آبی وسائل سید خورشید احمد شاہ نے اجلاس میں ای او بی آئی کے متاثرہ ملازمین کو مستقل نہ کرنے کا معاملہ اٹھایا۔ نور عالم خان نے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ وقفہ سوالات میں گیلری میں سرکاری اداروں کے حکام کی عدم موجودگی پر اسپیکر قومی اسمبلی نے نوٹس لیتے ہوئے برہمی کا اظہار کیا اور رولنگ دی کہ وقفہ سوالات میں تمام سرکاری اداروں کے حکام گیلری میں موجود رہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 31 جولائی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ آپ جب سزائیں نہیں دیتے، آپ جب قانون کی بالادستی نہیں کرتے، تو پھر آرمی ایکٹ کے تحت عدالتیں بنتی ہیں اور بننی چاہیے۔ اور میں دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں، مجھے آپ اپنی عدالت میں بلا لیجئے، توہین عدالت میں میں ثابت کروں گا کہ آپ کے موجودہ نظام انصاف سے آرمی ایکٹ کے تحت بننے والی عدالتیں جو ہے وہ جلدی انصاف مہیا کرتی ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یہ نہیں تھا، لیکن چونکہ ہمارے بزرگ ہیں حضرت علامہ یوسف انور صاحب، اور یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور بنانے سے یہاں تک ان جیسے اکابرین کا کردار ہے، وہ دکھی دل سے چیف جسٹس آف پاکستان جناب عطا بندیال صاحب آپ سے سوال کر رہے ہیں، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے سوال کر رہے ہیں، چیف جسٹس خیبر پختونخوا سندھ بلوچستان سے سوال کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے جو مجرم ہیں ان کو سزا کب ملے گی؟ کون سا وہ خوش نصیب دن ہوگا جس دن ہم یہ سنیں گے کہ ہماری عدالتوں نے جن لوگوں نے ریاست کے اداروں پہ حملہ کیا ان کو سزا دی ہے۔ یہ میری گزارش ہے، میری ایک بار پھر ملک بھر کے تمام علماء مشائخ سے اپیل ہے کہ اپنے واعظوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے خطبات میں، اپنی مجالس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، ورنہ دعا کے لیے میں گزارش کروں گا۔ حضرت دعا فرما دیں۔
वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि 9 मई के वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत हैं। अवाम आज भी सवाल कर रही है कि 9 मई के मुजरिमों को कब सज़ा मिलेगी। चाहते हैं कि 9 मई के वाक़यात के जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। फैसलाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंद अनासर को जल्द से जल्द सज़ा दी जानी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी ने कहा कि अवाम सवाल कर रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद, शरपसंदों और मास्टर माइंड्स को सज़ा कब दी जाएगी। रियासत पर हमलावर होने वाले शरपसंदों के खिलाफ सख्त से सख्त इक़दामात का मुतालबा किया जा रहा है। सिर्फ मजम्मत से नहीं बल्कि इन लोगों को सज़ा भी देनी होगी। 9 मई को जो वाक़या हुआ इसमें चंद शरपसंदों ने रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश की। रियासत पर हमलावर हुए पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ मज़मूम मकासद खुलकर सामने आए। इस मंसूबे में, इस शर्मनाक मंसूबे में शामिल लोगों को इबरतनाक सज़ा दी जानी चाहिए। आज भी अवाम ये सवाल कर रहे हैं, अदालतों से सवाल कर रहे हैं कि इन मुजरिमों को सज़ा कब दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 9 मई के वाक़यात के हवाले से गुफ्तगू की और उनका कहना था कि 9 मई के काबिल मज़म्मत वाक़यात के ज़िम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में जल्द लाया जाना चाहिए। उन्हें करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। अवाम भी यही सवाल कर रही है कि 9 मई के मुजरिमों को सज़ा कब मिलेगी। जल्द अज जल्द उन तमाम ज़िम्मेदारान को सज़ा दी जाए। और नाज़रीन, सेनेट ने 4 मुख्तलिफ तरमीमी बिल मंजूर कर लिए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में होने वाले इजलास में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी तरमीमी बिल, कंटोनमेंट्स एक्ट 1924 में मजीद तरमीम का बिल और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर किए गए। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। 100 इंडेक्स 394 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 47,076 पर बंद हुआ। तफसील बता रहे हैं, मजीद तफसील जानते हैं ज़मीर अब्बास की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब के मुआहदे के बाद से अब तक स्टॉक मार्केट में 7,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा जा चुका है। 26 जून 2023 को मार्केट 40,065 पर बंद हुई थी और आज कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर मार्केट ने 47,000 की नफसियाती हद अबूर की। मार्केट के माहिरीन का कहना है कि चीन के एग्जिम बैंक की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर $2.4 अरब के कर्जे को रोल ओवर करने के फैसले के मार्केट पर मुस्बत असरात पड़े हैं। कुछ ही अरसे में मार्केट ने 7,000 पॉइंट्स की तेजी दिखाई। उसकी वजह ये थी कि जो मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही थी, जो बेबुनियाद थी, वो सब झूठ साबित हो गई और आज पाकिस्तान के रिजर्व्स जो है वो $14 अरब तक पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है। इन्वेस्टर्स बड़े पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में भी मजीद इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जाएगी। आने वाले दिनों में बहुत बेहतरी देखने में आएगी। कारोबारी बिरादरी है, यानी कि जो हमारी यहाँ ताजिर बिरादरी है, वो इंतहाई मुस्बत देख रही है चीज़ों को। जो पॉलिसी है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की, और इसका इम्पैक्ट जो है वो आज शेयर मार्केट को देखा जाए तो बहुत तेजी नजर आई है। आज मार्केट में 17 अरब की लागत के 1,90,000 से ज्यादा शेयर के सौदे हुए, जिसका हजम 45,51 रुपए रहा। बाजार हिस्से में 343 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनमें से 146 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 181 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 16 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक 21 माह के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 47,000 की हद अबूर की है, जबकि 26 जून 2023 के बाद से अब तक मजमूई तौर पर स्टॉक मार्केट ने $1 अरब से ज्यादा की सतह को अबूर किया है। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान कहती हैं कि मौसमी तब्दीली मौजूदा दौर का बड़ा चैलेंज है। ग्लोबल वार्मिंग के बायस ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। इस्लामाबाद में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और वजारत मौसमियाती तब्दीली के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा तक़रीब से खिताब में उन्होंने कहा कि चैलेंजेस से निमटने के लिए एक मरबूत प्लान बनाया गया है। शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में दुनिया की मुतअद्दिद बुलंद तरीन चोटियाँ सयाहों की पसंदीदा जगह बन सकती हैं। सयाहत से इन इलाकों में तरक्की की राहें खुलेंगी। सयाहत को फ़रोग़ देकर दुनिया को शुमाली इलाका जात की खूबसूरती से रोशनास कराया जा सकता है। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुताल्लिक केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 342 का बयान कलमबंद कराने के लिए वकील चेयरमैन PTI की इस्तदा पर पीर के रोज़ मुल्ज़िम को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया।
वकील ने आइंदा समाअत पर मुल्ज़िम की अदालत पेशी पर 342 का बयान कलमबंद करवाने की यकीन दहानी करा दी। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना और समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर करते हुए मजीद जिरा की इजाज़त देने की तीसरी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने आज मुल्ज़िम के पेश न होने की सूरत में नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला किया था। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज़ एडवोकेट ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि मुल्ज़िम का 342 का बयान फिजिकल होगा। साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सिक्योरिटी देना इदारों का काम है। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मुकदमे की 37 समातें हो चुकी हैं और मुल्ज़िम जुडिशल कस्टडी समेत सिर्फ 3 बार अदालत पेश हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में चेयरमैन पीटीआई की अपीलों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात आने तक के लिए मुलतवी कर दी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने ख्वाजा हारिस के इस्तदा की मुखालफत करते हुए कहा कि इस अदालत ने 2 माह तक हुक्म इम्तनाई दिए रखा, उनका हक है किसी भी फोरम पर जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने ट्रायल कोर्ट में जारी कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर लेते हैं, जिसके बाद अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि चेयरमैन पीटीआई मुकदमात में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। तोशाखाना केस में आज मुल्ज़िम ने बयान रिकॉर्ड कराना था, आज फिर अदालत में पेश नहीं हुए। तोशाखाना तहाइफ को अरबों रुपए में फरोख्त करके डिक्लेयर भी नहीं किया। तहाइफ को ब्लैकमेल में बेचना कानूनन जुर्म है। तमाम गवाहान के बयानात भी कलमबंद हो चुके, उसके साथ साथ जिरा भी मुकम्मल हो चुकी। अब कोई भी ट्रायल जब अपने हतमी मराहिल में दाखिल होता है तो मुल्जिम का पेश होना और पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाना, अपनी सफाई पेश करना, ये लाजिम होता है। सिर्फ उन केसेस में मुल्जिमान पेश नहीं होते जिनमें उनको पता हो कि उनके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है। एक मनसूबा बंदी की है कि तहरीक इंसाफ ने एक मीटिंग करके इस बात का फैसला किया है कि वो अपने कारकुनान को वकला के यूनिफॉर्म में अदालतों और सड़कों पर लाएंगे। तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज के भी नोटिस में है और मैं आईजी इस्लामाबाद को भी इस हवाले से आगाह कर चुका हूँ कि ये जो एक साजिश तैयार की गई है जिसके तहत ये कारकुनान को वकला के यूनिफॉर्म में अदालतों में लाने की पूरी तैयारी है। इस हवाले से हमारे खदशात हैं कि ये अदालतों पर हमलावर भी होंगे, अमन अमान खराब करेंगे, जैसा कि उन्होंने उस दिन किया। पहला निशान हैदर हासिल करने वाले बहादुर सपूत कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की 75वें यौम शहादत को अकीदत व एहतराम से मनाया। क्या वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों ने हमेशा मादर वतन के दिफा को अपनी जानों पर फ़ौक़ियत दी। शहीद की अस्करी ज़िंदगी और कारनामों के हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की यौम शहादत पर गुजर खान के गांव संगरूरी में वाक़ई शहीद की यादगार पर गार्ड ऑफ ऑनर की पुरवकार तकरीब हुई। डायरेक्टर जनरल रावलपिंडी गैरिजन सिक्योरिटी एरिया ने आर्मी चीफ की तरफ से शहीद की यादगार पर फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी दी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के 75वें यौम शहादत पर उन्हें जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। अपने पैगामात में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने कहा कि पाकिस्तान के ये दरख्शंदा सितारे जिन्होंने मुल्क की आबरू के लिए अपनी जान निछावर की, बिलाशुबा इज्जत और तकरीम के मुस्तहिक और पूरी कौम का फख्र हैं। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की यौम शहादत पर दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं के साथ हुआ। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद रावलपिंडी के गांव सिंघूरी में 10 नवंबर 1910 को पैदा हुए। आपका ताल्लुक एक फौजी घराने से था। कैप्टन मोहम्मद सरवर ने 1944 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। उन्हें 1946 में मुस्तकिल तौर पर कैप्टन के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। आपने 27 जुलाई 1948 को कश्मीर के उड़ी सेक्टर में दुश्मन की अहम पोजीशन पर हमला किया। अपने जख्मों की परवाह किए बगैर 6 साथियों के हमरा उन्होंने पेशकदमी जारी रखी और खारदार तारों को अबूर करके दुश्मन के मोर्चे पर आखिरी हमला किया। दुश्मन ने इस अचानक हमले के बाद अपनी तोपों का रुख कैप्टन मोहम्मद सरवर की जानिब कर दिया। यूं एक गोली सीने में लगने से आपने शहादत पाई। बहादुरी की बेमिसाल तारीख रकम करने पर उन्हें बाद शहादत पाकिस्तान की आला तरीन अस्करी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। कैप्टन मोहम्मद सरवर की शहादत के बाद जनरल अयूब खान ने अपने खिताब में कहा कि मैं कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की कुर्बानी का जिक्र करते हुए फख्र महसूस करता हूँ, जिन्होंने सबसे पहले निशान हैदर हासिल करके पाकिस्तान की तारीख में एक नए बाब का इजाफा किया। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज।
کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کے 75ویں یوم شہادت پر ان کے اہل خانہ نے کہا ہے کہ سانحہ 9 مئی انتہائی افسوسناک تھا۔ کچھ افراد نے سیاسی وابستگیوں کی بنا پر کرنل شیر خان شہید کے مجسمے اور شہداء کی تصاویر کو نقصان پہنچایا، جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یونٹ جوائن کرنے سے پہلے انہوں نے مسجد میں دعا کروائی۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے شہادت کی دعا کریں۔ 9 مئی کے واقعات کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں کہ جس میں کچھ لوگوں نے سیاسی وابستگیوں کی بنا پہ کرنل شیر خان کے مجسمے کو نقصان پہنچایا، شہداء کی تصاویر کو نقصان پہنچایا۔ کسی قسم کی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر شہداء کی عزت اور تکریم کا احترام کرنا چاہیے۔ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے مجھے انتہائی دلی دکھ ہوا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے شہداء کی یادگاروں کی، ان کے مجسموں کی توہین کی گئی ہے۔ آپ کی سیاسی وابستگی جو بھی ہو، سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان آرمی ہونا چاہیے۔ جب لوگ سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، کیپٹن سرور شہید نشان حیدر جیسے لوگ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ان شر پسند عناصر کو یا ان قوتوں کو جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ شہدائے بدر کی اولادیں ہیں، یہ کبھی بھی آپ سے ہار نہیں مانیں گی۔ لاہور میں 9ویں اور 10ویں محرم کے جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اویس قریشی۔ صوبے بھر میں یوم عاشور کے موقع پر سیکیورٹی کے لیے بہترین اقدامات کیے گئے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے مختلف مقامات پر 5235 مجالس اور 650 عزاداری جلوس برآمد ہوں گے، جن کی سیکیورٹی کے لیے 6 ایس پیز، 22 ڈی ایس پیز اور 84 ایس ایچ او سمیت 13,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اس میں 10 لاکھ کیمراز کا ڈیٹا بیس، 6,500 سیف سٹی کے کیمراز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پورے محرم الحرام میں 37,376 مجالس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 9,000 سے زیادہ جلوس ان کی سیکیورٹی ڈیوٹی کی ہے۔ مرکزی عزاداری جلوس اور مجالس کو 3 درجاتی حفاظتی حصار پر مبنی سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، جبکہ پیٹرولنگ پولیس کا خصوصی پلان تشکیل دیا گیا ہے۔ یوم عاشور پر مرکزی عزاداری جلوسوں کے راستوں پر موبائل فون سروس مخصوص اوقات میں معطل رہے گی۔ دفعہ 144 کے تحت 9ویں اور 10ویں محرم الحرام کے دوران شہر میں ڈبل سواری پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ محرم کا بڑا امپورٹنٹ فیز شروع ہو گیا ہے اور 9 اور 10 خاص طور پر خصوصی اہمیت کے حامل ہیں، اور اس پہ ہم نے کمپریہنسو قسم کا سیکیورٹی پلان ایشو کیا ہے۔ یوم عاشور کے دوران شہریوں کی رہنمائی اور سہولت کے لیے ٹریفک کے متبادل روٹس کی ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب بھر میں محرم الحرام کے موقع پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے لاہور میں پولیس افسران سمیت 13,000 پولیس اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ اویس قریشی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور اب کچھ بات کریں گے ہم موسم کی۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارشوں اور سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں معظم الدین۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ دن بھر جاری رہا اور کچھ مقامات پر ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی۔ پی ڈی ایم اے نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں 30 جولائی تک طوفانی بارشوں کی پیشن گوئی کی ہے اور اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ صوبہ پنجاب میں بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کا اخراج 42,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریائے ستلج میں سلیمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور 84,000 کیوسک پانی کا اخراج ہے، جبکہ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کا اخراج 63,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریائے جیلم اور چناب میں پانی کا بہاؤ فی الحال معمول کے مطابق ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق لاہور، سائیوال، قصور، اوکاڑا، پاکپتن، بہاری زندگی کے کوئی ہولناک ترین کوئی انسیڈنٹ آپ کو پتہ ہو یا آپ نے دیکھے ہوں تو یہ ان میں سے ایک ہے، جس میں ایک باپ جو ہے وہ بیٹی کو جس طرح تشدد کر رہا ہے، اس کی آنکھیں ضائع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بیوی کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا ہے، اور چند ایک چیزیں جو ان کی بیگم نے ابھی بتائی ہیں جو اس نے کی ہیں، میرا خیال ہے یہ ناقابل معافی ہیں، اور ان کے ساتھ میں ایک وعدہ اندر کر کے آیا ہوں کہ ان کو انصاف دلائیں گے، چاہے وہ کسی بھی ہمیں جان مارنی پڑے، جو بھی کرنا پڑے، اور جلد از جلد دلائیں گے۔ اور میں تو زندگی میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص اس طرح کر سکتا ہے۔ اس بچی جو جس کی آنکھیں دونوں اس نے زخمی کی ہیں، ایک تو آج اس کی سرجری ہوئی ہے 4 گھنٹے کی،
इंशाल्लाह ताला एक आंख बचा लेंगे, दूसरी आंख के लिए जो भी मुमकिन होगा हमें उसको बाहर भेजना पड़ा, या यहाँ पे भी अली जान साहब भी इधर ही हैं, बुला लें, तो उसके लिए भी अगर हमें कुछ करना, जो भी कुछ भी करना पड़ा वो भी इंशाल्लाह ताला करेंगे। लेकिन इलाज के लिहाज से हमारी तरफ से कोई 1% भी कमी नहीं आएगी, और इंसाफ के लिहाज से भी इंशाल्लाह 1% कमी नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह ताला इस तरह के वाक़यात ना दिखाएं किसी को, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक किस्म की स्टोरी है। सीएम साहब ये बताइए कि एक तो अफसोसनाक वाक़या आपने उसमें कॉन्डोलेंस भी कर दी है और मेयर्स भी अब लेंगे, इस वक्त जो कमिंग स्टेप्स पर मुहर्रम आ गए हैं, आज आपने एक बड़ी मीटिंग भी शेयर की है मुहर्रम के हवाले से। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे सूबे के अंदर कैसी है, बारिशें भी हो रही हैं, मुहर्रम भी है, तो थोड़ा सा उस पर ब्रीफ करें कि किस आज काफ़ी डिटेल सेशन हुआ है, सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सारी थी वहाँ पे, और हमारा यही कोशिश है कि लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा ये कि बारिश जैसे आपने कहा कि वो भी आनी है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है, साथ साथ जुलूस चल रहे होंगे, सड़कें ब्लॉक होंगी, साथ बारिश हो रही होगी, रूट पे क्लियर करना है, सड़क पानी ज़्यादा हुआ तो जुलूस लेट होंगे, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन की है। तो होपफुली इंशाल्लाह ताला अपनी तैयारी मुकम्मल करेंगे। बाकी जो सर ये बताइएगा कि सर ये बड़ी खुशैन बात है कि आप अस्पतालों की तरफ बड़ी तवज्जो कर रहे हैं, आप हर शोबे को रिस्क अलाउंस दे रहे हैं, ये पुलिस में भी है और दीगर जो महकमे उसमें भी है। ये बताइए जो पैरा मेडिकल स्टाफ है अस्पतालों में जो काम करता है, सबसे पहले फर्स्ट एड ये देते हैं, सबसे पहले पेशेंट को डील ये करते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिस्क में तो पैरा मेडिकल स्टाफ होता है अस्पतालों का, तो उसके लिए सर ये रिस्क अलाउंस क्यों? अभी तो सबके लिए तनख्वाहें बढ़ गई हैं, सब कुछ मोहसिन नकवी से मोहसिन इंसानियत बन गए हैं, क्योंकि आप अस्पतालों में भी जा रहे हैं, कोई ऐसा वाक़या हो रहा है, सैलाब आ रहा है, पानी आ रहा है, उधर चले जाते हैं। लेकिन इस वक्त अस्पतालों के अंदर नर्सिस कैडर की शदीद कमी है। 16,000 नर्सिस आज 550 की आज 550 की अप्रूवल दी है। चीफ मिनिस्टर साहब ये बताइएगा कि आज आपने एक मीटिंग शेयर की है और उसमें 8, 9, 10 को ड्रोन कैमरों पर पाबंदी लगी। डीजी खान और रावलपिंडी में थ्रेड अलर्ट्स आए हैं, आपको भी थ्रेड अलर्ट है, इस हवाले से क्या प्लान किया है? ड्रोन्स के मेरी मीडिया वालों से, सारे भाइयों से रिक्वेस्ट होगी कि उसको यूज़ ना करें, बिकॉज़ उसके ज़रिए बहुत ख़दशा है कि दहशतगर्दी हो सकती है, और वो एक पॉसिबिलिटी है, इसलिए हमने सारों पे पाबंदी लगाई है कि वो ना इस्तेमाल करें। दूसरा थ्रेट्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अपना अपना काम कर रही हैं, और इंशाल्लाह ताला फुली हॉस्पिटल में मशीनें खराब हैं, RFTs की मशीन खराब है, और दूसरा जिना हॉस्पिटल PH में वहाँ पे पार्किंग हो दी गई है, लेकिन वो कब्जा है, कोई भी नोटिफिकेशन अभी कर रहे हैं, चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, बहुत चीज़ें ख़राब है। बात यह है कि आपने इसलिए किया कि 30 की बजाय 10 लिए जाए, अभी भी वो 30 सॉर्ट आउट कर रहे हैं, यकीन करें, आप यकीन करें। नहीं, देखिए मेरी बात सुन, जब लाहौर पार्किंग कंपनी आ रही है तो रेट फ़र्क हो रहा है, बिल्कुल उससे पहले ओवर चार्ज कर रहे थे, और जो ठेकेदार था उसको 10 का रेट है, वो 30 चार्ज कर रहा था लाहौर पर। मैं निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बुरेवाला में हौलनाक वाक़या पेश आया, इस हवाले से उन्होंने आयारत की है बच्ची की भी, और उस मौके पर उन्होंने कहा कि हम मुतासरीन को फौरी और जल्द इंसाफ फराहम करेंगे। प्रोग्राम में हम कुछ बात कर रहे हैं मौसम के हवाले से। यहाँ आपको बताएं मुल्क भर की तरह ज़िला लोधरा में भी मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों से गर्मी की शिद्दत में तो कमी आई है, लेकिन कपास, मकई और चारा फसलों को नुकसान पहुँचा है। अब तक ज़िले भर में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। मज़ीद तफसील जानेंगे अब्दुल्ला डाहा से जो वहाँ पर मौजूद हैं। अब्दुल्ला, बताइएगा लोधरा में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है और ओवरऑल बारिशों के बाद कितना नुकसान हो चुका है? जिला लोधरा में गुज़िश्ता एक हफ्ते से वक्फे से मानसून बारिशों का सिलसिला आज भी जारी है। लोधरा शहर और उसकी तीनों तहसीलों में तेज़ हवा के बाद बादल गरजे और खूब जमकर बरस रहे हैं। लोधरा में अब तक 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। इस बारिश से मौसम तो सुहाना हो गया है, लेकिन फसलों को नुकसान पहुंचा है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की वजह से लोधरा में काश्त की जाने वाली कपास की फसल, जो कि अब फ्रूटिंग के अमल में दाखिल है, बारिश का पानी खड़ा होने से ख़राब होना शुरू हो गई है, जबकि सूरजमुखी, मकई और चारा की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है। महकमा ज़राअत ने हमें कहा है कि भाई अपनी फसलों से पानी निकालें, इसीलिए हम ये पानी वगैरह निकाल रहे हैं।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 26 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि मतला दिन भर अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक लोधना के गिरदो नवाह में अगले चंद रोज़ मज़ीद बारिश होने का इम्कान है। दूसरी तरफ तेज़ बारिश से शहर भर में पानी खड़ा हो गया है, जिसे TMA लोधना का स्टाफ भारी मशीनें लगाकर निकाल रहा है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला डाहा तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ठट्ठा शहर के शाही बाजार और कच्ची आबादी से बरसात का पानी निकाल दिया गया। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया ने बहुत कोशिशें की हैं। 4 रोज़ की बरसात से शाही बाजार ठट्ठा में 3 से 4 फीट पानी जमा हो चुका था, जिसे निकाला गया है। मजीद क्या सूरत हाल है और तफसील क्या है बताएंगे हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा हसन बेग। हसन, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त? 4 रोज़ की बरसात ने ठट्ठा शाही बाजार, कच्ची आबादी, म्यूनसिपल कमेटी ठट्ठा और एदी सेंटर के अलावा दूसरे तमाम इलाकों को जो है पानी की लपेट में ले लिया था। और पानी जो था घुटनों घुटनों जो है वो शाही बाजार के अंदर था। सारा कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल हो चुका था। लोग परेशान थे, खरीदारी के लिए परेशान थे, दुकानदारों को जो है वो सख्त परेशानी हो रही थी। म्यूनसिपल कमेटी ठट्ठा और ज़िला इंतज़ामिया ठट्ठा ने फ़ौरन एफर्ट लिए और म्यूनसिपल कमेटी ठट्ठा के जो नए चेयरमैन हैं उन्होंने भारी मशीनरी के ज़रिए जो है वो शहर से पानी बाहर निकाला है और उसके अलावा कच्ची आबादियों से पानी निकाल दिया है। मैंने कराची से मशीनरी लाई थी और बेंचिंग मशीन के ज़रिए उनको पूरा क्लीन कराया। और शहर में जो शाही बाज़ार है वो मेरे ख्याल में कोई 15 साल से कभी उसकी डिसिल्टिंग नहीं हुई थी। वो उधर बेंचिंग मशीन मैंने लगाई थी तो वो भी 15 दिन पहले हमने उसको पूरा क्लीन करा लिया। सफाई का अमला चौकस है और वो काम कर रहे हैं, अपनी जितनी अवेलेबिलिटी है उनके पास। तो हमने PDMA से भी मदद मांगी है और ज़िला इंतज़ामिया भी का तामुन भी उनके साथ है। और ज़िला इंतज़ामिया ठट्ठा और म्यूनसिपल कमेटी की वजह से आज ठट्ठा शहर जो है शाही बाज़ार पूरा साफ़ हो चुका है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो है जुलूस की गुजरगाह भी है। 8 से 10 मुहर्रम तक यहाँ से जुलूस गुजरते हैं। लोग सख्त परेशान थे क्योंकि यहाँ 3 फीट तक पानी था। पानी साफ़ हो चुका है, लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया। इत्मीनान का इजहार किया। बहुत शुक्रिया हसन, तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, मानसेहरा और गिरदो नवाह में मानसून बारिशों की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात भी मानसून बारिश के बायस नवाही इलाके शाहकोट पोठा में मकान पर तोदा गिरने से 4 अफराद के जाम बहक होने के इत्तलात हैं। हलाक होने वालों में एक खातून और इसके 3 बच्चे शामिल हैं। मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए लाशों को मलबे से निकाल लिया है। मौसम की हम बात कर रहे हैं और मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी हवाले से हमें इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम साहब ने ज्वाइन किया है। उनसे मजीद जान लेते हैं कि बारिशों का जो ये स्पेल है कब तक जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को आपने वक्त दिया। जी, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, बारिशों का जो स्पेल है हम देख रहे हैं कि कई रोज़ से जारी है और अब तो जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा हो रहा है। हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि बारिशों का जो ये सिलसिला है कब तक जारी रहेगा और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, शिद्दत क्या रहेगी? क्या ये इसी शिद्दत के साथ इसी रफ्तार से जारी रहेंगी या शिद्दत में कोई कमी आ सकती है? देखिए, अभी ये जो मौजूदा स्पेल है, जैसे महकमा मौसमियात की एडवाइजरी आज भी उन्होंने इशू की है, तो ये 30 तारीख तक जो है हैवी फॉल्स एक्सपेक्टेड है। जैसे नार्दर्न एरियाज, कश्मीर, पेशावर, अपर केपी, इस्लामाबाद, लाहौर, इन एरियाज में आने वाले दिनों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस तरह जो हमारे डीजी खां के नाले हैं वहाँ फ्लैश फ्लडिंग, जैसे कोई सलमान से पानी आता है, फ्लैश फ्लडिंग होगी वहाँ पे भी तूफ़ानी आ सकती है। और जो हमारे बलूचिस्तान के इलाके हैं, आज भी अभी भी वहाँ पे जो है सदरन बलूचिस्तान जिसमें खारान, अवारान वगैरह शामिल है, उसमें भी अभी काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रही है। और सिंध के इलाकों में भी जैसे सक्कर, खैरपुर में अभी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो चौधरी साहब, अभी जो सूरत हाल है, ख़ासतौर पर अगर हम पंजाब की बात करें या फिर सिंध के बलाई इलाकों की बात करें, जहाँ कपास काश्त की गई है या मकई काश्त की गई है, वहाँ पर बारिशों की सूरत हाल क्या रहेगी? और अब तो चूँकि उस स्टेज पर है फसल के, उसको फूल लग रहे हैं, फल लगने के करीब है, तो बारिशें कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं उन किसानों के लिए, उन काश्तकारों के लिए? जी, अभी जैसे पंजाब में तो जैसे एक महकमा मौसमियात के मुताबिक, एडवाइजरी के मुताबिक अभी अगले 30 तारीख तक काफ़ी अच्छी बारिशें होंगी। जैसे नार्दर्न और सदर्न पंजाब में भी अच्छी बारिशें हैं। इस तरह जो सक्कर डिवीज़न है वहाँ पे भी अच्छी बारिशों की जो फोरकास्ट है। तो इन फसलों के लिए जो ज़्यादा बारिशें तो नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। बारिशें ख़तरनाक हो सकती हैं। कराची के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि कराची का मौसम गुज़िश्ता हफ्ते भी जो रवां हफ्ता है इसमें शिद्दत इख्तियार की बारिशों ने, आइंदा हफ्ते के हवाले से भी कोई एडवाइजरी है महकमे मौसमियात की? नहीं, लेकिन इसमें है जो अभी आज के दिन थोड़ी बारिश हो सकती है, उसके बाद कराची में और सिंध के सदर्न पार्ट्स में जो है वो बारिशें तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी या बहुत थोड़ी होंगी।
और आने वाले दिनों में अभी जैसे 4-5 दिन है, इसमें उनकी तरफ बहुत हल्की बारिशों से कोई हैवी सिस्टम नहीं है उस तरफ। सही, बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ मौजूद रहे और मौसम की सूरत हाल से और आने वाले दिनों में जो एक्सपेक्टेशंस हैं बारिश के हवाले से महकमा मौसमियात के उस हवाले से आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, रुख करेंगे ज़िला रहीम यार खान का, जहां मानसून बारिशों से कपास की तैयार फसल को नुकसान पहुंचा है, जबकि ज़िले में 4,70,000 एकड़ पर काश्त कमाद की फसल की पानी की कमी पूरी होने से काश्तकारों को फ़ायदा भी हुआ है। तो इसी हवाले से तफसील से आगाह कर रहे हैं इशफाक अहमद। मानसून बारिशों से ज़िला रहीम यार खान में कपास की तैयार फसल को नुकसान पहुंचा है। कपास के फूल में बारिश का पानी जाने से नए टिंडे बनने का अमल बंद हो गया है, जबकि जिन इलाकों में कपास की चुनाई हो रही थी वहां चुनाई रोक दी गई है। बारिश से रुई और बनोला की क्वालिटी मुतासर हुई है, जिससे कपास की फी एकड़ पैदावार में कमी का इम्कान है। ज़िला रहीम यार खान की चारों तहसीलों रहीम यार खान, लियाकतपुर, खानपुर और सादकाबाद में कपास की फसल पर भरपूर फुलगोडी बारिश से ज़ाया हो गई है। बारिशों की वजह से कपास की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है और कपास को जो फूल वगैरह लगे हुए थे वो बारिश के पानी की वजह से गल सड़ जाएंगे। बारिश की वजह जे फुल बूटी लगी है, गोगड़े शोगड़े खत्म थी गए, काफ़ी नुकसान आ गए, फुल गिर गए। दूसरी तरफ बारिश से रहीम यार खान में 4,70,000 एकड़ पर काश्त कमाद की फसल को फायदा हुआ है। जून में सूखी हुई कमाद की फसल बारिश से बेहतर हुई है, जबकि इस पर जूं समेत मुख्तलिफ बीमारियों का जो हमला था वो भी खत्म हो गया है। जिम्मेदारों को कमाद को पानी और खाद देने की जरूरत ही नहीं रही। बारिशें हुई हैं माशाल्लाह, इनसे कमाद का बहुत ज़बरदस्त लशग्रीन हो गया है। खाद की ज़रूरत की भी में कमी आएगी और पेस्टिसाइड की भी ज़रूरत में कमी आएगी। बारिश से कमाद की बीमारी खत्म होने से फसल हरी भरी हो गई है। काश्तकार को 2 से 3 पानी की बचत के साथ 1 बोरी यूरिया की भी बचत हुई है। इस तरह बारिशों से कमाद के काश्तकार को 20,000 रुपये फी एकड़ फायदा हुआ है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें हमारी टीम के हमरा दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए PTV न्यूज़।